बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ग्रेड 9 बायोलॉजी फेडरल बोर्ड के चैप्टर नंबर 4 के जितने हमारे शॉर्ट्स रह गए थे और MCQ उसको आज डिस्कस करेंगे। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए पहले हम इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है पहले वो डिस्कस कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग: डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेल्स स्मॉलर इन साइज और टर्जर। ये आपको दिए गए हैं, कहते हैं इनकी इंपॉर्टेंस बताएं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ facilitated diffusion. Facilitated diffusion is important because it regulates what does and what goes out of the cell. When a transport protein moves a substance from higher to lower concentration, the process is called facilitated diffusion. The rate of facilitated diffusion is higher than simple diffusion. Important cellular mechanism like transport of oxygen, nutrients, and ions, which are essential to maintain optical homeostasis in the cells, are performed through facilitated diffusion. Facilitated diffusion is also a type of passive transport because there is no expenditures of cell. ठीक है, तो इसके बाद ये देखिए इसकी डायग्राम भी दी गई है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि डिफ्यूजन क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, ये दो की है। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. Active transport is very important process enabling cells to accumulate molecules or ions from the environment against the concentration gradient. Conversely, contents of the cell heavily loaded with the electrolytes or metabolic products can be excreted against the concentration gradient. Active transport is involved in many processes. For example, uptake of dissolved mineral salts by the root hair, absorption of glucose and amino acids by cells in the small intestine of humans. The cell membrane of neuron has sodium-potassium pumps. By activity of these pumps, neuron maintain more sodium outside and more potassium inside. Such ionic distribution is necessary for proper working of neuron. इसके बाद importance of cell smaller in size. The surface area to volume ratio limit the cell size because the bigger cells get the less surface area it has for its size. Thus, if the cell grows beyond a certain limit, not enough material will be able to cross the cell membrane fast enough to support life. Cells are so little so they can maximize their ratio of surface area to volume. Smaller cells have a higher ratio which allows more molecules and ions to move across the cell membrane per unit of cytoplasmic volume. Cells are so small because they needed to be able to get the nutrients in and the waste products out quickly. इसके बाद है importance of turgor. It maintains the shape of cell. It gives rigidity to the cells and maintains their structure. It is the basis of the opening and closing of stomata. When turgor pressure is high, the stomatal pore opens, and when the turgor pressure is low, the stomatal pores closes. Cells or organelles remain stretched. ठीक है, तो जी अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट टू सेल्स बिकॉज इट अलाउज देम टू गेन द यूजफुल सब्सटेंस दैट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एनर्जी एंड ग्रो एंड लेट्स देम गेट and waste product. Diffusion is the movement of molecule from an area of higher concentration to the area of lower concentration along the concentration gradient. Diffusion is one principal method movement of substances within cells as well as across the cell membrane. Carbon dioxide, oxygen, glucose, etc. can cross cell membrane by diffusion. Gas exchange in gills and lungs occur by this process. Movement of glucose molecule from small intestine lumen into the blood capillaries of the villi. Another example of diffusion. ठीक है, तो importance of diffusion है. अगला है importance of osmosis. It helps in the movement of important material inside and out of the cell. The nutrients, water, and other solute move in and cut off cell by the process of osmosis. ठीक है, तो ये है importance of osmosis. तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, why osmosis can be considered as a special type of diffusion. तो जी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है शॉर्ट, तो इसका आंसर ये है, ऑस्मोसिस इज स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन्वॉल्विंग वाटर मॉलिक्यूल्स. इट अकर्स व्हेन अ पार्टली परमिएबल मेम्ब्रेन सेपरेट्स टू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन. ऑस्मोसिस इज अ पैसेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इनटू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ पार्टली परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो ये इसका आंसर है. वो बुक में अवेलेबल नहीं था नोट्स में, तो मैंने इस तरह से आपको बुक से लिख के आपको दिखा. तो जी अगला है लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट, वाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन नॉट बी यूज टू स्टडी लाइफ प्रोसेसेस.
तो जिसका आंसर ये है, फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप टू बी इफेक्टिव इट वर्क्स इन वैक्यूम सो दैट द beam of electron, the main source of illumination, is not scattered by air molecules. The specimen is placed in a vacuum chamber. Cells cannot survive in a vacuum, hence only studied when died that in an electron microscope. The disadvantage of studying dead cells is that they limit the understanding of cellular processes because they cannot be viewed in real time. Studying live cells allows scientists to understand physiological changes of cells and their biological relevance. तो ये इसका आंसर है। तो जी देखिए, हमने ये तीनों शॉर्ट जो रह गए थे वो हमने कर लिए। अब एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। तो जी देखिए, पेज नंबर 61 पे जो है इसके ये एमसीक्यूज है। तो पहला एमसीक्यूज है, अ नेटवर्क ऑफ चैनल एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। ये डेफिनेशन है किसकी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये डेफिनेशन है। ठीक है। द साइड ऑफ एंजाइम सिंथेसिस इन सेल इज, जो एंजाइम सिंथेसिस की जो साइड है वो कौन सी है? वो है लाइसोसोम। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद है थर्ड वन, इन विच ऑर्गेनेली आर न्यूक्लिक एसिड्स एब्सेंट। ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी, गोल्जी एपरेटस पे जो न्यूक्लिक मेम्ब्रेन एसिड्स होती हैं वो नहीं होती हैं। ठीक है। तो इसके बाद है, द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन अ सेल इज 0.9%, द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन सराउंडिंग फ्लूइड इज 0.1%। हाउ कुड द सेल ऑब्टेन मोर कैल्शियम? कहाँ से, अगर ये इतने परसेंट के पास होंगे, ठीक है, फ्लड इतने परसेंट होगा और कैल्शियम इतने परसेंट है, तो सेल में ये बताना है कि जो सेल ऑब्टेन मोर कैल्शियम, कि कहाँ से कैल्शियम ज्यादा लिया जाएगा। तो कहाँ से लिया जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी, एक्टिव साइट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से फिर लिया जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर है 5, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ स्मॉल सेल साइज? मेन एडवांटेज बताने इन चारों में से इसका ऑप्शन नंबर 1 है, स्मॉल सेल्स कैन बेटर टेक अप व्हाट दे नीड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अब 6 है, which of the following clues would tell you whether a cell is prokaryotic or eukaryotic? तो इसका है फर्स्ट वाला ये, whether or not the cell is partitioned by internal membrane। इसके बाद 7 है, which of the following help root hair to take up water? तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, large surface area। इसके बाद ये देखें है, what is the major advantage of using a light microscope instead of electron microscope? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, superior resolution। ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ठीक है। Which of the following clues will tell you whether a cell is prokaryotic or eukaryotic? आपको कौन से जो इनमें से बताएगा कि कौन, अगर सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, कैसे पता चलेगा आपको? तो इसकी स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है? whether or not the cell is partitioned by internal membrane, यानी कि ऑप्शन 1। इसके बाद है, which of the following helps root hair cells to take up water? तो इसका है ऑप्शन नंबर डी, large surface area। What is the major advantage of using a light microscope instead of an electron microscope? सबसे ये सुपीरियर रेजोल्यूशन, ये पहले भी हमने आई थिंक किया है यहाँ पर, ये देखें। ठीक है, ये वाला यहाँ पर भी आ गया। चलें अगला कर लेते हैं 12, हाउ डू नाइट्रेट आयन ऑक्सीजन एंड वाटर इन द रूट हेयर सेल? तो इसका है ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्लिक करें, ये डी नहीं है, ये ए है। ठीक है। इसके बाद है 13, द टेबल शोज 3 फंक्शन ऑफ सेल, विच रो इज करेक्ट? 3 फंक्शन यहाँ पर बताए गए हैं, यानी कि इस तरह से ए बी सी डी। अब इनमें से बताना है कि कौन सा जो है 3 पेयर यहाँ पर देखिए, कौन सा ऑप्शन ठीक है, किसके बारे में ठीक है? सेल्स के बारे में, फंक्शन ऑफ सेल के बारे में। तो इसका है ऑप्शन बी, रूट हेयर सेल, जाइलम वेसल्स, रेड ब्लड सेल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद है, द रिजॉल्विंग पावर रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप मे बी डिफाइंड एज शार्पनेस ऑफ इमेज, स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, हाईएस्ट मैग्निफिकेशन, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद है, द टेबल शोज द प्रेजेंस और एब्सेंस। ठीक है। तो इसके बाद है, द टेबल शोज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस इन 3 टाइप ऑफ सेल, विच ऑप्शन इज करेक्ट? 3 टाइप बताई गई है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस की। तो इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो इसका आप लगाएंगे बी ऑप्शन, एब्सेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट। कंपेनियन सेल प्रेजेंट होते हैं, सीव एलिमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, और रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन ग्रीन प्लांट्स? ग्रीन प्लांट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम का क्या फंक्शन है, अब ये बताना है।
तो जी देखिए इसका फंक्शन होता है सी, सपोर्ट, एंड जाइलम का क्या होता है, सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ये तो सबको पता है कि सपोर्ट करता है वाटर को और ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लोएम का होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर, वो शुगर ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनमें से बताना फंक्शन कौन सा है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन, ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है, ऑप्शन डी। अ रेड ब्लड सेल्स एंड अ प्लांट रूट हेयर सेल बोथ हैव अ लार्ज सरफेस एरिया, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है विच सेल कंपोनेंट इज रिलेटेड टू पिनोसाइटोसिस, तो इसका है ये वाला ऑप्शन ए, सेल मेम्ब्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ऑल यूकेरियोटिक सेल्स, तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। तो ये सारे के सारे एमसीक्यूज आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में हमने सारे के सारे जो है वो एमसीक्यूज कर लिए हैं, हमने जो बाकी जो शॉर्ट रह गए थे पिछली वीडियो में, ठीक है, तो ये बाकी के भी कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सटेंसिव क्वेश्चन, इनके लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ये बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर कोई भी नई वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुंच जाता है, तो आपके सर्चिंग करने में कोई मसला नहीं होता, आप उसको इजिली लिंक को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज।